Hello and welcome to Study with Sudhir, your own digital classroom. This is an important video, especially अगर आपको prepositions में doubts आते हैं तो. So in this video, as part of the English Grammar with SWS series, अगर आपको ये सारे videos चाहिए तो इस playlist को ढूंढिए on SWS channel. English Grammar with SWS करके एक playlist है, उसमें आपको इस तरह के सारे videos मिल जाएंगे जो last year नाटू नाटू series में किए थे. All that and do subscribe. प्लीज सपोर्ट द चैनल. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज मैं क्या करने वाला हूं, जैसा आपने टाइटल में देख लिया होगा, आई एम गोइंग टू डू द प्रपोजिशंस रिलेटिंग टू डेप्थ. ओके, अंडर, बिलो, बीनीथ, अंडरनीथ, ये चारों प्रपोजिशंस का इस्तेमाल होता है टू इंडिकेट गहराई, यानी कि इंडिकेट डेप्थ. बट which one to use where, and that becomes very confusing, right? So that's what I'm going to talk about in this video. So please do share the video and subscribe and support. ये जरूरी बनता है, इतना तो करना मांगता है. Okay, so and there is going to be a quiz at the end of the video as well. So stay with the video right till the end, because I do believe this. See, we don't believe in doing some chatta videos. बेकार की बातें नहीं. We want to do stuff which will be of use to you in your examination. Okay. Let's get started. So prepositions of depth. When we talk about it in Hindi language, okay, or even in any other vernacular language, be it Bengali or Tamil or Telugu, wherever, right? Niche in Hindi becomes below, it becomes beneath, it becomes under, it becomes underneath in English. So the question is, किस चीज का इस्तेमाल कहां करें, और whether prepositions of depth को डेप्थ के अलावा भी कहीं और यूज किया जा सकता है या नहीं. Yes, जरूर किया जा सकता है, and that is what is the strange part and the beauty of the English language, कि a preposition which is basically used to indicate depth, उसका इस्तेमाल आप डेप्थ के अलावा कई और जगहों पर भी कर सकते हैं. तो मजा आएगा सुनने में. You will learn and revise a lot of these kind of things. Okay, so what is the difference? So the words under, below, beneath and underneath can all mean in a lower place or position and sometimes covered by something else. So this is the basic definition of all these prepositions of depth. That is, in a lower place or lower position and sometimes hidden by something else, covered by something else, right? इसी का इस्तेमाल इन सभी वर्ड्स का इस चीज को इंडिकेट करने के लिए इन चारों prepositions का इस्तेमाल किया जाता है. Now, एक एक करके चलते हैं. Under is more common than below or the other two words. So underneath, beneath और below से ज्यादा under का इस्तेमाल किया जाता है ना? You use under more than below, more than beneath, more than underneath, right? Those three are not as much used as under is used. तो under का इस्तेमाल इसलिए होता है to refer to when something is almost immediately below the other. एक चीज दूसरे चीज के नीचे है तो अंडर का इस्तेमाल आप करते हैं. इट कैन ऑल्सो मीन दैट समथिंग इज कवरिंग द अदर थिंग और हिडन बाय समथिंग, कि किसी चीज को ढका गया है या किसी चीज को छुपाया गया है, राइट? सो उस केस में भी आप अंडर का इस्तेमाल. अंडर इज जनरली इट्स लाइक it will be used in 80% of the cases kind of a situation, right? Basically used to mean a lower place. Under का मतलब नीचे. So नीचे का सबसे ज्यादा उपयोग अंडर के साथ किया जाता है अंग्रेजी में. ओके, सो उदाहरण के तौर पे देखिए, वी सैट अंडर द स्टार्स, यानी कि तारों के नीचे बैठे. बिलो द स्टार्स तो नहीं होगा ना, अंडर स्टार्स के नीचे. बिलो वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं. कीप योर बैग अंडर द सीट, बस में सवारी कर रहे हैं या ट्रेन में सवारी कर रहे हैं, द अदर पैसेंजर विल कम, अरे तुम सीट पे रख के तुम सीट को ऑक्यूपाई क्यों कर रहे हो? कीप द बैग अंडर द सीट. Below also can happen, but under का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है. That's why I said many of the others can also be used, but you also have to see किसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है. The thief hid under the bed, कि लोग वापस आ गए, चोर चोरी कर रहा था, उसको पता नहीं चला क्या किया, वो बेड के नीचे चला गया. He was hiding under the bed. The cat is under the table, टेबल के नीचे, right? बिलो का इस्तेमाल आप करेंगे टू टॉक अबाउट समथिंग लोअर देन अनदर थिंग, और व्हेन टू अदर थिंग्स आर नॉट टचिंग ईच अदर, इट इज द ऑपोजिट ऑफ अबव. मैं prepositions ऑफ हाइट अलग से करूंगा, राइट? ताकि आपको आई डोंट वांट टू क्राउड एवरीथिंग इनटू वन वीडियो. तो अब आप लग रहे कितना याद करने के लिए याद नहीं हो रहा है.
धीरे धीरे याद कीजिए ताकि एक एक करके वी विल कीप सॉर्टिंग आउट a lot of these stuff. So it is the opposite of above, and when two things are not touching each other, so in that sense it is also different from beneath, because beneath may it kind of touches the surface. He has a mole just below his right shoulder. दाहिने कंधे के नीचे एक तिल है, right? He has a mole below his right shoulder. रीड द इंस्ट्रक्शंस बिलो बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग. आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा जाता है ऊपर, रीड द इंस्ट्रक्शंस बिलो बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग. जो नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसको लिखिए. तो आप एक तरह से अपने इसमें याद कर लीजिए, ओके यहां पर बिलो का इस्तेमाल किया जाता है, यहां पर अंडर का इस्तेमाल किया जाता है. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. हिज नेम इज बिलो माइन ऑन द मेरिट लिस्ट. मेरिट लिस्ट आया और मेरा नंबर 2 पे था, उसका नंबर 5 पे था, राइट? हिज नंबर वाज नॉट अंडर माइन, बिलो माइन. Below my name would be better. The sun disappeared below the horizon. I found him waiting below the building. Building के नीचे he was waiting for me. Beneath का इस्तेमाल beneath is a little more formal usage. जब आप थोड़े formal official अंग्रेजी का इस्तेमाल करें तब आप beneath का इस्तेमाल करते हैं. When the lower surface is touching the upper object. ये काफी इंपॉर्टेंट है. इस चीज को हमेशा याद रखिए, बिकॉज अंडर और बिलो में टच नहीं कर सकते, नॉर्मली नहीं करते हैं. बिलो में तो बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन बीनीथ में इट इज टचिंग द सरफेस. ही वोर ए टी शर्ट बीनीथ द जैकेट. कि जैकेट पहना हुआ है, उसके नीचे उसने एक टी शर्ट पहना है. द टी शर्ट इज टचिंग द जैकेट. सो आप बीनीथ का इस्तेमाल करेंगे. अंडर और इवन अंडरनीथ ऑल्सो विल बी करेक्ट. अंडरनीथ भी करेक्ट होगा, under the jacket also will be correct, but beneath is like definitely touching the surface. I have kept money beneath the books या beneath the pillow, यानी कि तकिए के नीचे मैंने पैसे रखे हैं या बुक्स के नीचे मैंने पैसे रखे हैं. उसको देने हैं 500 रुपए, तो वो 500 रुपए मैंने बुक्स के नीचे रखे हैं, राइट? So since it is touching the surface of the book, you will write beneath the books. The ground beneath my feet began to shake, यानी कि मेरे पैरों के नीचे जो जमीन है, राइट, दैट बिगैन टू शेक. द फीट आर टचिंग द फ्लोर, राइट, द ग्राउंड. सो इट बिगैन टू शेक इन एन अर्थक्वेक. सो इट विल बी यूज्ड बीनीथ. सो बीनीथ का ध्यान रखिएगा, इट विल बी ओनली यूज्ड व्हेन द टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. समझ में आ गया? अरे रे, the layer beneath our skin is very sensitive. Again you're talking about in contact. Underneath is very less used and it is वो कुछ अल्ट्रा फॉर्मल है, ये कुछ ज्यादा ही फॉर्मल है. ये फॉर्मल का भी एक्सेल साइज है, राइट? फॉर्मल वे ऑफ सेइंग अंडर कन्वेज एम्फेसिस, राइट? ये थोड़ा सा ब्रिटिश टाइप अंग्रेजी हो जाता है, राइट? सो द बुक्स आर इन द बॉक्स अंडरनीथ द बेड, राइट? अंडर द बेड भी चलेगा. अंडर द बेड आप लिखेंगे तो ये गलत नहीं होगा, राइट? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बेड के नीचे. बट एज आई सेड, इट्स अ स्लाइटली मोर फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश. ही गॉट आउट ऑफ द कार एंड लुक्ड अंडरनीथ. लुक्ड अंडरनीथ यानी कि कार के नीचे देखा, अरे कुछ चीज तो नहीं लगी हुई है, बॉम्ब तो नहीं लगा हुआ है कार के नीचे, राइट? जैसे पुरानी फिल्मों में होता था, राइट? सो दैट अंडरनीथ इज यूज्ड, बट as I said, underneath is much less used than under in most cases. Now ये सब तो हो गए prepositions of depth को लेके, लेकिन the interesting part is that the same prepositions, the same 4 prepositions can be used in other ways also which are not related to depth. Okay, ये पढ़ते हैं, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है. अंडर का इस्तेमाल होता है टू कन्वे ए स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि मनोस्थिति, यानी कि आपके मन की क्या स्थिति है उसको कन्वे करने के लिए भी अंडर का इस्तेमाल किया जाता है. इन उदाहरणों को आप जरा, मैं याद रट्टा मारने को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप समझ जाएंगे तो आपको यूज करने में फायदा होगा. और इसका इस्तेमाल सिर्फ ये क्लास 8, 9, 10 के लिए नहीं है, 11th 12th में भी ये काफी काम आएगा आपको, राइट? एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी. विद एग्जाम्स अप्रोचिंग आई एम अंडर ए लॉट ऑफ वर्क प्रेशर. अरे मेरे एग्जाम 4 दिन बाद है, बहुत ज्यादा प्रेशर है. आई एम अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज इतना ज्यादा सिलेबस अभी तक तो पढ़ा ही नहीं था, मटर गश्ती कर रहा था, तो अभी मेरे को पढ़ने का है, तो आई एम अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर.
रोहित शर्मा विल बी अंडर प्रेशर टू डू वेल एट द क्रिकेट वर्ल्ड कप बिकॉज इंडिया ने कभी 2011 के बाद वर्ल्ड कप नहीं जीता है. सो इंडिया को के ऊपर रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ के ऊपर काफी प्रेशर होगा. तो प्रेशर होगा, ऊपर से आएगा, लेकिन हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं, राइट? सो दे विल बी अंडर प्रेशर टू परफॉर्म वेल एट द वर्ल्ड कप, राइट? सो यू प्लीज रिमेंबर दिस, एंड दिस इज ऑल व्हाट? स्टेट ऑफ माइंड. आप अपने मन की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं. अंडर इज ऑल्सो यूज टू कन्वे एज और क्वांटिटी. अंडर 20 स्टूडेंट्स अटेंडेड द फिजिक्स क्लास टुडे. आज फिजिक्स क्लास में सिर्फ 20 बच्चे भी नहीं आए, 20 से भी कम बच्चे आए, मींस लेस देन 20. 20 बच्चों से भी सिर्फ 17 बच्चे आए, राइट? आप 17 नहीं बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे अंडर 20 स्टूडेंट्स अटेंडेड द फिजिक्स क्लास टुडे, राइट? तो दैट इज हाउ इट विल बी यूज्ड. और this movie is not suitable for children under the age of 18. In some cases below का भी इस्तेमाल किया जाता है, but under will be definitely okay. So this movie is not suitable for children under the age of 18. Under will always be in official communication वगैरह under का इस्तेमाल किया जाता है. Below is a little informal हो जाता है कभी. Under is used to convey that something is managed by someone. ये कैसे होगा? The firm will be under a new management from September. September से इस कंपनी को उसने टेक ओवर कर लिया है, तो दिस कंपनी विल बी अंडर दैट न्यू मैनेजमेंट. यानी कि नया मैनेजमेंट इस कंपनी को हैंडल करेगा सितंबर से. तो इसका आप ध्यान रखिए. सो उस केस में भी अंडर का इस्तेमाल किया जाएगा, राइट? अंडर इज यूज टू इंडिकेट ए स्टेट ऑफ समथिंग. इसका क्या मतलब हुआ? माई हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन. मनोस्थिति के बारे में बता दिया, बट दिस इज ए स्टेट ऑफ समथिंग विच इज नॉट टू डू विद द माइंड. सो my house is under construction, that stadium is under construction, right? So you will use the word under. Under as a prefix to show weakness, ये तो काफी common है. The doctor told me my child is underweight. You know कि उसका वजन उसके height और उसके उम्र के हिसाब से it is a little less. So he is underweight. He needs to eat better. Opposite of overweight. Overweight, underweight. Your parents should not underestimate your talent in music. तुम्हारा संगीत में बहुत टैलेंट है. योर पेरेंट्स शुड नॉट अंडरएस्टिमेट. अंडरएस्टिमेट मतलब यू विल डू बेटर. नाउ इसमें नॉर्मली इस तरह के वर्ड्स आपको प्रेपोजिशंस में नहीं आएंगे एग्जाम में, बिकॉज इट इज यूज्ड एज वन वर्ड. अंडर वेट अलग अलग वर्ड के यूज में, या अंडर एस्टिमेट को अलग अलग करके यूज नहीं होता है, एक ही में यूज होता है. लेकिन इसका फायदा आपको आप बाद में CUET का एग्जाम या किसी भी इंग्लिश का एग्जाम देंगे, उसमें आपको यह फायदा जरूर होगा. ओके, यू आर अंडर एज सो यू कैन नॉट एंटर दिस क्लब. यानी कि तुम्हारी उम्र इस क्लब को एंटर करने के लायक नहीं है. द राइस इज अंडर कुक. चावल पका नहीं है, सो इट इज अंडर कुक्ड. सो प्लीज रिमेंबर दिस डिफरेंट वेज इन विच अंडर इज यूज्ड. देन ईडियम्स, मुहावरों के रूप में, फ्रेजेस के रूप में. अंडर द वेदर का क्या मतलब है? तबीयत खराब होना, मीन्स नॉट फीलिंग वेल. ओ आई कैन नॉट कम टू ऑफिस टुडे, आई एम ए लिटिल अंडर द वेदर. अंडर द वेदर का मतलब है ऐसा नहीं है कि मैं मौसम का लुत्फ उठा रहा हूं. It's not that I'm enjoying the weather. It means I am not feeling well today. So under the weather is a good idiom to use in your essays or informal letters, etc. Under one's breath, speaking very softly. That is another phrase which is used. How do we use below? यहां तक समझ में आ गया? Under का अब इसके बाद एक टेस्ट भी होगा, तो ध्यान रखना. Below is also used in relation to a reference point such as height and temperature or even marks. Temperatures in July were below average. Under average नहीं बोलेंगे, यहां पर below average का इस्तेमाल होगा. He did not get admission to the college because his marks were below the cutoff percentage. Cutoff percentage था 90, उसके आए थे 88, तो उसको एडमिशन नहीं मिला. He did not secure admission because his marks were below the cutoff percentage. तो यहां पर below का इस्तेमाल होगा. This city is 300 meters below sea level. यानी कि जो MSL रहता है उसके sea level के 300 मीटर नीचे है ये शहर. Then usage as an idiom, below the belt. ये एक तरह से बॉक्सिंग का आइटम है. Term comes from boxing where hitting below the belt is not allowed. लेकिन below the belt का इसका इस्तेमाल इसलिए होता है that you try to kind of do something which is not considered very desirable. That was a below the belt remark. यानी कि जो तुमने कहा that was not in good taste. You should not have said that kind of a remark. Means it was a slightly niche kind of a comment जो हमारे politicians भी काफी बोलते हैं.
अरे Beneath is to talk about people's emotions or stature. Her parents think that the man she loves is beneath her. इसका क्या मतलब है? Beneath her इसका मतलब है कि उसके नीचे है. No. ऑफिस में उसके नीचे काम करता है. No. Beneath her मतलब उसका जो स्टेचर है, उसका जो रुतबा है सोसाइटी में, उसका जो एक पर्टिकुलर स्टेटस है सोसाइटी में, उस बंदे का स्टेटस उतना नहीं है. सो जब शादी की बात हो रही है, दे फील लड़का is not an equal match. He's not coming up to her. She earns more than her, she's more successful, she's more educated, better qualified than that boy. So usko कहने का क्या होगा? That he's beneath her, right? You cannot think that the job is beneath you. आप ये नहीं सोचते कि ये काम मेरे लायक नहीं है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा. घर में मम्मी बोलती है ये जरा फैन साफ कर दो, नहीं ये सब काम नहीं है, इट्स beneath me. दो थप्पड़ मिलेगा. Beneath you, साफ करो, उठ के स्टूल लाओ, साफ करो, right? So no job is beneath you. So but he thought that this job was beneath him, right? So that's how it is used. So this is an interesting way of using beneath. Please make a note of it. Beneath that happy face is actually a sad person. He's showing that he's a very happy person, but actually he's very sad. So beneath that happy face, चेहरे में काफी खुशी नजर आती है, but अंदर में actually he or she is a very udas person, very sad person, right? So that's how beneath is used. Please make a note of it. Now let's get to the quiz. Can you see? ये दोनों नोट कर लो. आप 5 क्वेश्चंस हैं, नोट कर लो, and then I will tell you the answers. Can you see that star just dash the moon? He wore a sweater dash his coat. Okay, आगे चलो. The wreck of the aircraft, इसको छोटा ही कर देता हूं. The wreck of the aircraft पढ़ लो, नोट करो. I'll wait for a few seconds and then I'll tell the answers. चले तो पहला होगा, कैन यू सी दैट स्टार जस्ट बिलो द मून? बिलो द मून. ही वोर ए स्वेटर डैश इज कोट. नाउ स्वेटर और कोट में गैप है या टच कर रहा है? टच करने के टाइम पे मैंने क्या कहा था, किस चीज का इस्तेमाल होगा? आप लिखेंगे बीनीथ. अंडरनीथ भी लिख सकते हैं, बट बीनीथ का इस्तेमाल इज बेटर. ओके, देन ये तीन बताइए, आपने लिख लिए या नहीं? द wreck of the aircraft that crashed still remains under the sea. समुंदर के नीचे. Dash, what circumstances can this experiment be declared a success? कि किस स्थिति में इस एक्सपेरिमेंट को एक कामयाबी बताया जा सकता है? So it will be under. Under what circumstances can this experiment be declared a success? The bag is dash 7 kg, so it will be permitted as cabin baggage. 7 kg से कम है, 6 kg है, 6.5 kg है, तो उसको cabin baggage में aircraft allow कर देगा. So this also will be under. Okay. So I'm hoping that this video has been of use. समझ में आया, मजा आया, और आप prepositions of depth को लेकर और उसके दूसरे इस्तेमाल को लेकर you will never make a mistake with prepositions relating to depth and the other ways in which below, under and beneath and underneath are used. Okay, tata, bye bye, thank you very much, God bless you. Share, subscribe, support, the 3 S's you need to do with SWS. Tata, bye bye.